Good morning students and again welcome to our economics class. In our earlier classes we completed our two units, national income and related aggregates, that is the weightage of 10 marks. Then income and employment determination, that is the weightage of 12 marks. So we completed our 22 mark syllabus out of 80 marks. In both the units we got minimum two numericals in the exam, one from the national income and one from the multiplier. दो न्यूमेरिकल आपके इस एग्जाम में आएंगे, एक तो नेशनल इनकम में से और एक आपका मल्टीप्लायर में से, और दोनों हमारे सिलेबस की सबसे बड़ी यूनिट्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट यूनिट. It is the government budget and it is a weightage of 6 marks. In this chapter we study about what is the meaning of government budget, what are the different objectives of government budget, then we study components of government budget, then we study deficit in the government budget. What are different types of deficit, revenue, fiscal and primary deficit, what are their meaning and what are their implication. We study all these in this unit or in this chapter. Both are same unit and chapter. First we start from meaning of government budget. I think everybody make the budget in his life. हर पर्सन अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बजट बनाता है to fulfill his requirements. The first question comes in our mind, what is the budget? बजट क्या होता है? सिंपली अगर बात करें तो बजट होता है कि हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर का एक स्टेटमेंट, कि हमारे को कहां से इनकम मिल रही है और उस इनकम को कहां पर स्पेंड करेंगे, तो उसका एक स्टेटमेंट हमारे लिए क्या होता है? बजट. पर यहाँ पर जो बजट पढ़ रहे हैं, इट इज अ गवर्नमेंट बजट. अगर गवर्नमेंट की बात करें तो हमारे माइंड में आता है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इवन लोकल गवर्नमेंट. हम यहाँ जो बजट पढ़ते हैं, इट इज द बजट ऑफ आवर सेंट्रल गवर्नमेंट, जस्ट लाइक इट प्रेजेंट इज मोदी गवर्नमेंट. सो हम किसकी बात करें यहाँ पर? गवर्नमेंट बजट. And government budget is only the central government. So first question comes in our mind, what is government budget? Government budget is the financial statement which shows item wise receipt and expenditure of the government for the coming financial year. एक तरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो बताता है आने वाले एक साल के अंदर गवर्नमेंट को किस किस आइटम से रिसिप्ट्स होगी, कहां से रेवेन्यू जनरेट होगा और गवर्नमेंट उसको कहां पर स्पेंड करेगी. तो इसका एक लेखा जोखा या बोल सकते हैं पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमारे लिए क्या कहलाएगा? गवर्नमेंट बजट. व्हाट इज इट्स मीनिंग? गवर्नमेंट बजट इज द एनुअल स्टेटमेंट showing item wise estimates of receipt and expenditure during a fiscal year. जैसे आपको बताया, it's a financial statement which shows itemized receipts and expenditure for the coming financial year, and time duration of a financial year is 1 year, 1st April to 31st March. Okay, so that's the meaning of government budget. Now we see what are some important features of the government budget. What are the important features of this government budget? We discuss one by one. First is budget is prepared by the government at all levels. It means central government, state government, local government, etc. But we will restrict our study only to central government budget, which is known as union budget. जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि हर लेवल पर, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, म्युनिसिपल कम्युनिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, हर लेवल पर गवर्नमेंट बजट बनाती है. पर हम हमारे आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस. We study only the central government budget, which is also known as union budget. Second, estimated expenditure and receipts are planned as per the objective of the government. अब गवर्नमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उसको कहां पर कितनी मनी स्पेंड करनी है. So decide by the government what are its coming expenditure. In India, budget is presented in the parliament on such a day as the president may direct. हमारे कंट्री में क्या बजट सबसे पहले कहाँ प्रेजेंट होता है? पार्लियामेंट में. और इन पार्लियामेंट इट्स प्रेजेंट इन द लोकसभा. फिर लोकसभा के बाद हो जाता है राज्यसभा में क्लियरेंस के बाद. फिर राज्यसभा में क्लियरेंस होने के बाद, ये नहीं होता तब भी
परसेंट सिग्नेचर के लिए जाएगा और उसके बाद ये अप्लाई होगा फ्रॉम 1 अप्रैल। इन अवर कंट्री, जैसे आई टोल्ड यू, इट्स प्रेजेंटेड इन द लोकसभा बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर। टेक प्रेजेंट आवर फाइनेंस मिनिस्टर इज निर्मला सीतारमण। So she presented the budget first in the Lok Sabha. Lok Sabha give clearance to the budget, then it's give to the Rajya Sabha. अगर राज्य सभा इसको क्लियरेंस देती है नहीं देती तो इसका ऑटो अप्रूवल सिस्टम होता है। इट मींस अगर राज्य सभा इसको क्लियरेंस नहीं दे रही है तब भी 14 डेज के अंदर इसको वहां से क्लियरेंस मान लिया जाएगा। फिर उसके बाद ये वापस लोकसभा में आएगा और वहां के जो मेंबर्स ऑफ लोकसभा है, एमपी हम बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, और उसमें कुछ वो चेंजेस चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट उस पर रेडी है तो उसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे और फिर उसके बाद वो जाता है प्रेसिडेंट डिस्कस होने के बाद, प्रेसिडेंट सिग्नेचर के बाद, प्रेसिडेंट सिग्नेचर होने के बाद हर साल वो 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हो जाता है। जब ये गवर्नमेंट, हमारी मोदी गवर्नमेंट पावर के अंदर आई तो इन्होंने आते बजट में सबसे पहले 2 मेजर चेंजेस करे। इनके पहले बजट 2 तरह से हमारे प्रेजेंट होता था। एक तो होता था हमारा जनरल बजट और दूसरा था हमारा रेलवे बजट। पर मोदी गवर्नमेंट ने दोनों को मर्ज करके सिंगल बजटरी सिस्टम कर दिया। अब सिर्फ एक ही बजट आता है, रेलवे बजट अलग से प्रेजेंट नहीं होता। ब्रिटिशर्स ने ये चीज स्टार्ट किया था, उन्होंने 2 तरह के बजट प्रेजेंट करने लगे थे, वो रेलवे बजट और जनरल बजट। क्योंकि उस समय जो रेलवे बजट है वो जनरल बजट का एक बहुत बड़ा पार्ट होता था, इवन समटाइम्स 85%। पर आज हम देखते हैं तो जो रेलवे बजट है वो गवर्नमेंट बजट के लगभग 15% के आसपास होगा। तो गवर्नमेंट का मानना है कि इसके लिए अलग से बजट प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ जनरल बजट। सेकंड, पहले बजट प्रेजेंट होता था 26 एंड 28 ऑफ फेब, 26 को रेलवे बजट और 28 फेब को जनरल बजट। सिंपली आप कह सकते हो द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द फेब। पर मोदी गवर्नमेंट आने के बाद इन्होंने चेंजेस करा। अब बजट जो लोकसभा के अंदर प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है 1st वर्किंग डे ऑफ द फेब, जनरली ऑन 1st फेब। फेब का जो 1st वर्किंग डे फरवरी का, उसके अंदर इसको बजट को प्रेजेंट किया जाता है। और उसके पीछे लॉजिक है कि पार्लियामेंट को इस पर डिस्कशन के लिए जो चेंजेस करने उनको ज्यादा टाइमिंग अवेलेबल होगा। तो 2 चेंजेस करे मोदी गवर्नमेंट आने के बाद इन द बजट। And just like I told you, it's need the requirement of the parliament before its approval, before it's implemented. अब इसको implement करने के पहले हमारे को उसको पार्लियामेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट, so it's compulsory. Now let's study what are the objectives of the government budget. अब गवर्नमेंट बजट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? The first is reallocation of resources. As we know that in every country resources are available in the limited quantity, so we need to reallocate these resources from less use to the more use, or even from those sectors where their utilization is very low and to those sectors where they are good utilized or they are utilized in the better quantity or better way. Now let's study it with the help of book. By the budgetary policy, government aims to allocate resources in accordance with the economic and social priority of the country. Economic priority हमारे लिए क्या होती है? जनरली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और सोशल प्रायोरिटी क्या होती है हमारे लिए? सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस एलोकेशन ऑफ रिसोर्स बाय इट्स टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज। क्या मान लो कुछ एरिया ऐसा है कि जहां पर कुछ गुड्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट समझती है कि हमारे लिए लेस यूजफुल है, पब्लिक को नुकसान होता है, तो गवर्नमेंट उस पर ज्यादा टैक्सेस लगाती है, जस्ट लाइक लीकर, टोबैको प्रोडक्ट्स। और इसके अपोजिट कुछ गुड्स ऐसे हैं कि जिनका गवर्नमेंट चाहते हैं कि इसका कंजम्पशन ज्यादा हो, जस्ट लाइक खादी प्रोडक्ट्स। खादी आल्सो रिलेट्स आवर इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो गवर्नमेंट चाहती है जैसे खादी है तो गवर्नमेंट क्या करती है? उस पर सब्सिडी देती है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जिन गुड्स का कंजम्पशन कम हो तो उस पर ज्यादा टैक्सेस चार्ज करेगी। और सेकंड, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि जिन गुड्स का कंजम्पशन ज्यादा हो तो उन पर गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। सेकंड, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब बहुत सारी जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज होती है जस्ट लाइक वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, ये भी कौन सप्लाई करता है? जनरली गवर्नमेंट। उसके पीछे बेसिक 2 रीजंस हैं। एक तो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होती और दूसरा हेवी इन्वेस्टमेंट्स होता है, तो प्राइवेट सेक्टर इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता। सो गवर्नमेंट आल्सो एलोकेट इट्स रिसोर्सेज टू प्रोवाइड द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट, reallocation of resource,
government like to produce those goods which are used by in the general public in a big quantity or they are related with the social welfare. And government also like to reduce the consumption of goods which are harmful for the public under the reallocation of resources. Secondly, reducing inequality of income and wealth. Government also want to reduce the inequality of income and wealth. अगर किसी इकोनॉमी के अंदर इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटीज है, इट मींस द रिच पीपल है कुछ ज्यादा रिच होते जा रहे हैं, पुअर पीपल है ज्यादा पुअर होते जा रहे हैं, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है कंट्री की उसका बेनिफिट रिच पीपल को मिल रहा है, पुअर पीपल को नहीं मिल रहा। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है, इनइक्वालिटीज को रिड्यूस किया जाए। अब इसके लिए जनरली गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी कंट्री में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रखा है। गवर्नमेंट चार्ज हायर टैक्सेस in percentage terms on the richer section. It means with the increase in income, tax level also increase, and lower or even zero taxes on the poor persons. And second, government also provide different goods and services, even it is sometimes free cost or at a very low cost for the people which are living below the poverty line. तो एक तरफ तो गवर्नमेंट ज्यादा टैक्सेस चार्ज कर रही है, दूसरा गवर्नमेंट जो पुअर पीपल से उनके बेनिफिट्स के लिए गुड्स और सर्विसेज को कम प्राइस पर या बोल सकते हैं समटाइम फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड कर रही है टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक इक्विलिटी इन द कंट्री। थर्ड इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट आल्सो वांट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द कंट्री। गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि हमारी इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन की कंडीशंस हो, मतलब इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी कंडीशंस हो, हिंदी के अंदर बोलते हैं तेजी और मंदी की कंडीशंस हो, बिकॉज बोथ आर हार्मफुल फॉर द गवर्नमेंट। अगर इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी कंडीशन से मनी सप्लाई बढ़ रहा है, एग्रीगेट डिमांड रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहेगी कि उससे प्राइसेस बढ़ेंगे और एक कॉमन पीपल को नुकसान होगा, ये बोल सकते हैं जो बीपीएल लोग हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। सो गवर्नमेंट लाइक टू कंट्रोल इट। इन दैट केस गवर्नमेंट will reduce the taxes, government reduce the income tax levels etc. तो अगर इकोनॉमी इन्फ्लेशनरी कंडीशंस है तो गवर्नमेंट इन्फ्लेशनरी कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए अपने एक्सपेंडिचर्स कम करेगी, पुअर पीपल को ज्यादा बेनिफिट्स देगी, प्राइसेस कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, मनी सप्लाई को रिड्यूस करने की कोशिश करेगी बाय द डिफरेंट मेजर्स। अगर इसके अपोजिट इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशनरी कंडीशंस है, एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, अब उस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या चाहेगी, एग्रीगेट डिमांड लेवल इंक्रीज हो। अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस कम करेगी, इंटरेस्ट रेट्स कम करेगी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो भी आपने पढ़ा है, गवर्नमेंट आल्सो रिड्यूस ऑल दिस। सो गवर्नमेंट लाइक टू मेक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द कंट्री। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। देयर आर डिफरेंट एंटरप्राइजेस which are established and operated by the government. Just like you can say that BSNL, Indian Railway, Gas Authority of India Limited, Steel Authority of India Limited, Indian Oil Corporations, all these are the few banks, SBI, State Bank of India, Punjab National Bank, Bank of Baroda, all these are the government sector enterprises. And their management is also the main motive of the government budget. Government provide fund for these enterprises. If among these few are running under loss, to recover their loss, government provide the funds. So government try to manage public sector enterprises with its budgetary policy. गवर्नमेंट अपने बजटरी पॉलिसी से जितने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, चाहे आपको बीएसएनएल है, चाहे वो इंडियन रेलवे है या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, इन सबको गवर्नमेंट क्या करती है, मैनेज और कंट्रोलिंग का वर्क करती है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। एवरी कंट्री वांट इकोनॉमिक ग्रोथ, हर कंट्री चाहते हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छी हो। वी आल्सो वांट देयर इकोनॉमिक ग्रोथ मस्ट बी 2 digits, इट मींस 10 or more than 10%, but 8% is a dream for us because of this covid infection। इस बार तो चांसेस है कि बार हमारी इकोनॉमी जीडीपी ग्रोथ रेट इवन 0% भी हो सकती है, पर गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो, और इसको इंक्रीज करना होगा कि जो हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, चाहे हमारे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाहे हमारे वो एफडीआई है, चाहे हमारी कंट्री के अंदर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स है। गवर्नमेंट लाइक टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट्स इन द कंट्री टू बूस्ट अप द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स। Government decrease the interest rate in the country and give different type of benefits to the investors.
So government also want economic growth of the nation, reducing regional disparities. Yes, in our country we also find regional disparities. Few states are very developed in industrial sector, just like we say that Gujarat, Maharashtra, West Bengal, Tamil Nadu, these are the developed states in industrial sector, while Rajasthan, some area of UP, MP, these are the backward states in industrial development. तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हमारे इकोनॉमी के अंदर रीजनल डिस्पैरिटीज खत्म हो, ओवरऑल इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो। तो जो एरिया कम डेवलप्ड है वहां के लिए गवर्नमेंट डिफरेंट बेनिफिट्स देती है और डिफरेंट टाइप के अनाउंसमेंट करती है अपने बजट में, जस्ट लाइक रिड्यूसिंग टैक्सेस, फ्री और इवन subsidized land, free or sometime even free or subsidized electricity, availability of transportation, it may be railway or it may be road transportation. So reducing the regional disparities is also the main objective of the government budget. So all these are the objective of government budget which we see in detail. So in today's class we study what is government budget, what are its important points and what are the objectives. In the next class we study what are the components of government budget, just like revenue budget, capital budget and its more components. Thank you.